दीपाली, सारे इनको पार्टिसिपेंट को म्यूट ऑल है? हाँ मैम, राइट्स नहीं देना है ना? नहीं दिए मैम, सेटिंग करके रखी है मैम मैंने। ठीक। आवाज आ रही है किसी? हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ हो चुकी है। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सो हम लोग स्टार्ट करें। ओके, 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए, अब करो स्टार्ट। Good morning, everyone. I, Priyanka Sisodia, on behalf of Mathematics Department, Medicaps University, warmly welcomes Honorable Professor Dr. Dilip K. Patnaik, Vice Chancellor, Medicaps University, Honorable Professor Dr. D. K. Panda, Pro Vice Chancellor, Medicaps University, all respected deans, HODs, faculty members, and it's my immense pleasure to welcome our today's expert, Dr. V.K. Gupta, sir, Professor, HOD Mathematics, Director, Ramanujan Research Center, PG Department of Mathematics, Government Mathur Science PG College, Ujjain. Today we all here gathered to celebrate Mathematics Week, which is catalyzed and sponsored by National Council for Science and Technology Communication, NCSTC, DST New Delhi, and MP Council of Science and Technology, MPCST Bhopal. As National Mathematics Day is observed on 22nd December of every year in the honor of Srinivas Ramanujan, the mathematical genius Ramanujan was born on 22nd December 1887. Ramanujan's knowledge of mathematics was startling. He worked out the Riemann, the elliptic integral, Mach theta function, Ramanujan conjecture, and many more. Ramanujan was also known as the man who knows infinite. Today is our second day of seminar, and we are honored to have Dr. V.K. Gupta sir as our expert. He is the one of the personality who sent proposal to Government of India, Delhi, for declaring 22nd December as National Mathematics Day. He also delivered more than 100 lectures in national and international seminar on Ramanujan. More than 100 research paper of him was published in international journal, and he is the author of more than 15 books. Now I would like to invite Dr. V.K. Gupta sir to address the session. Over to you, sir. Thank you very much. I am audible. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सभी? Yes, sir. चलिए, should I start? Yes, sir. Please. I welcome on the occasion of national all the dignitaries O Vice Chancellor Sri Panda ji, convener of the program, and HOD Maths Dr. Rekha Jain, co-convener Dr. Rinku Verma, Professor Dipali Biniwale, dignitaries of the MP caste if available, students and faculty members. Since 2012, we are celebrating 22nd December as National Mathematics Day every year. I think we are going to complete 1 decade since we are knowing Ramanujan through seminar and workshops only. मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक 22 दिसंबर को जो है हम रामानुजन को जो है संगोष्ठियों सेमिनार के माध्यम से जानते हैं और फिर लगभग 1 वर्ष पश्चात आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर द चैप्टर बिकम्स क्लोज्ड. तो ऐसी स्थिति में द पब्लिक मैन एंड द स्टूडेंट्स वो रामानुजम को रिकॉल नहीं कर पा रहे और यही एक सबसे बड़ा जो कारण मैं समझ रहा हूं कि रामानुजम जो है इज मैन ऑफ some sort of top most mathematicians. यद्यपि
देश की जो बड़ी बड़ी रिसर्च संस्थान है, जिसमें रामानुजम मैथमेटिकल सोसाइटी हम ले लें, और एक दो और कुछ संस्थान है, वहां पर रामानुजम के ऊपर कुछ खास कार्य चल रहा है, लेकिन आम आदमी अभी भी रामानुजम को नहीं जान पाया। तो हाउ टू एस्टेब्लिश एंड इंट्रोड्यूस रामानुजम अमंग ए पब्लिक एंड कॉमन मैन, क्योंकि रामानुजन जो है वो बहुत एक सामान्य व्यक्ति रहे, एक बहुत सामान्य जीवन उन्होंने जिया और असामान्य गणित की उन्होंने खोजें करी है। यहाँ मेरा जो टॉपिक है कि चूंकि देश में तो हम ये देखें कि ये पॉलिसी कैसे बनी, भारतीय संदर्भ में, इंडियन हेरिटेज एवं कल्चर के संदर्भ में इस पॉलिसी को कैसे बनाया गया और इसमें कितना समय लगा। तो रामानुजन जो है नई पॉलिसी के संदर्भ में और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। तो पहले हम एक नटशेल में देखें कि नई एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से हुई, यानी हाउ द जर्नी स्टार्ट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यदि यहाँ हम ये देखें कि व्हाट वाज द विजन फॉर द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जब इस पॉलिसी के निर्माण के लिए एक कमिटी बनी, कमिटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें सबसे पहले जो चेयरपर्सन थे वो सुब्रमण्यम जी थे, लेकिन फिर उनके पास आउट होने के कारण उसका चेयरमैन जो बने कस्तूरी रंगन जी बने, जो इसरो से पूर्व में जुड़े रहे। तो ये 11 सदस्यीय समिति सबसे पहले बनी। 11 member committee was formed under the chairmanship of कस्तूरी रंगन। और इसके जब ये कमिटी फॉर्म हुई तो कमिटी ने अपनी यात्रा जब शुरू करी तो बहुत सारे एकेडमिशियंस, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, एनजीओ से जो है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस मांगी कि नई शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्रणाली जो थी वो तो 1835 में भी आई थी, जब लॉर्ड बेंटिंग ने एक्ट इंडियन काउंसिल में पारित कराया था और मैकाले ने उसे मूर्त रूप दिया था। तो ब्रिटिश इंडिया में भी एजुकेशन पॉलिसी थी। देयर आफ्टर पहली इंडिपेंडेंट इंडिया में जो पॉलिसी बनी वो 1968 में आई, उसको 86 में लागू किया गया और कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हुए और 1992 में लागू कर दी गई। नाउ एट ए ग्लांस, अब यदि हम ये देखें कि 1968 की एजुकेशन पॉलिसी में क्या था, तो गणित के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज्ड एज द व्हीकल टू ट्रेन ए चाइल्ड टू थिंक, रीजन, एनालिसिस एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली। ये उस पॉलिसी के नटशेल में मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को लेकर लिखा गया था, यानी गणित को जो है काफी तवज्जो उसमें दी गई थी। दूसरा उसमें पॉइंट था कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स विल बी सुटेबल, रीडिजाइन टू ब्रिंग इट इन द लाइन विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर के साथ में जो एल्गोरिदम आज तैयार हो रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स वाज केप्ट इन द सेंटर। ये सेकंड पॉइंट रखा था, क्योंकि उस समय कंप्यूटर जो है उसकी शुरुआत विदेशों में तो हो चुकी थी, लेकिन हमारे देशों में एक प्रारंभिक तौर पर शुरुआत से हो चुकी थी, इसलिए उस पॉलिसी के केंद्र में ये बात भी कही गई थी। तीसरा पॉइंट उस पॉलिसी में रखा गया था कि साइंस एंड मैथ्स should be an integral part of general education till the end of school stages। 1986, ये 1968 की मैं बात कर रहा हूँ, 1986 में जो है साइंस एंड मैथ्स should be taught on a compulsory basis
to all peoples as a part of general education during first 10 years of schooling. यानी इसको जो हम कहते हैं ना कि अनिवार्य शिक्षा, गणित और विज्ञान को जो है 1986 की पॉलिसी में एक अनिवार्य शिक्षा के रूप में स्थान देने के लिए रिकमेंडेशन की गई। और दूसरा उसमें विद्यालयन शिक्षा के लिए एक पैरा था कि एवरी प्राइमरी स्कूल शुड हैव ए साइंस कॉर्नर टू कीप स्पेसिमेन मॉडल्स एंड चार्ट्स विथ नेसेसरी स्टोरेज फैसिलिटीज। यानी यहाँ पर स्कूल शिक्षा में विज्ञान और गणित को काफी ऊपर रखा गया था। और फिर यही पॉलिसी 92 में रिवाइज हुई। देन व्हाट वाज द रीजन? ये तो पुरानी पॉलिसियों की हम बात कर रहे हैं कि 1835 में मैकाले की, 1968 और 1968 के बाद 1986 और फिर रिवाइज होके 1992। अब यदि हम यहाँ गौर करें कि इतनी शिक्षा प्रणाली स्वतंत्र भारत में भी आई, तब भी हमारे यहाँ का जो छात्र था, हमारे यहाँ की जो रिसर्च थी, हमारे यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसमें हमारा देश और प्रदेश पीछे क्यों रह गया? तो इस पे एनालिसिस आवश्यक हो जाता है। यदि हम कारण को खोजें कि पिछली शिक्षा प्रणालियों में जब गणित विज्ञान को पर्याप्त स्थान दिया गया था, फिर भी आज हम गणित विज्ञान में पीछे क्यों हैं? हमारे यहाँ की प्रतिभाएं क्यों पलायन कर जाती है? तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि जो 1835 में लॉर्ड बेटिंग ने एक एक्ट पास किया था इंडियन काउंसिल में। उस इंडियन काउंसिल में जो एक्ट उन्होंने पास करा था, वो ब्रिटिश गुलाम भारत में हम जो है शिक्षा प्रणाली को पढ़ते रहे। और कॉन्सिक्वेंटली भारत जब स्वतंत्र हुआ, तब भी मैकाले की ही शिक्षा प्रणाली, उसको हम 1968 में पढ़ते रहे, 1986 में भी पढ़ते रहे, और उसका मॉडिफाइड रूप 1992 तक हम जो शिक्षा प्रणाली को पढ़ते रहे, मोस्टली इस वाज बेस्ड ऑन मैकाले की शिक्षा प्रणाली में गणित विज्ञान को तो तवज्जो दी गई थी, लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत उनकी ये थी कि मैकाले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा था कि मैंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारतीय शिक्षा, भारतीय हेरिटेज और भारतीय संस्कृति का मैंने बहुत अध्ययन किया, और मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत लंबे समय तक भारत पर राज नहीं कर सकते जब तक कि हमने इसके शिक्षा प्रणाली या इसकी बैकबोन जो एजुकेशन है उसको हमने नहीं तोड़ा। यानी ये मैकाले ने भारतीय धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का बहुत अध्ययन किया था, यहाँ के हेरिटेज का भी अध्ययन किया था, और उसे लगा था कि हम भारत में बहुत ज्यादा राज नहीं कर पाएंगे। यदि हमें लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाना के रखना है, तो हमें विदेशी शिक्षा भारतीयों पर थोपनी पड़ेगी। यानी विदेशी शिक्षा प्रणालियां इस तरह की बनी हो कि उनके केंद्र में भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी तक हम 1992 तक, 1835 से लेके 1992 तक जिस शिक्षा प्रणाली को पढ़े, वो शिक्षा प्रणाली में बेशक गणित और विज्ञान को तो कवरेज दिया गया था, लेकिन उसके केंद्र में विदेशी संस्कृति और विदेशी सभ्यता, इसको केंद्र में रखा गया था, ताकि हमारा भारतीय छात्र जो है, हमारा इंडियन पब्लिक मैन जो है, वो ये जान सके कि भारत में आज जो भी शिक्षा प्रणाली, जो भी धर्म विज्ञान आ रहा है, वो सब विदेश की देन है। तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश हुकूमत पर बहुत लंबे समय तक राज किया, और हमारे ही यहाँ की धरोहर को उन्होंने हमें वापस स्थानांतरित कर दिया, और पूरी क्रेडिट ब्रिटिश ले गई। तो इसके परिणाम क्या हुए कि हमारे यहाँ के बच्चे को आज भी नहीं मालूम
कि आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य कौन रहे, भारतीय दर्शन क्या रहा, इंडियन डिस्कवरीज क्या रही। आज भी यदि हम प्राइमरी एजुकेशन की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वही चीज आ रही जो 300 वर्षों से चल रही है, जानी जानी जस पापा एंड लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। तो आप देखेंगे कि क्या अभी तक भारत में, जबकि भारत को स्वतंत्र हुए 1947 से कितने वर्ष हो चुके, लेकिन आज भी हम ब्रिटिश सभ्यता संस्कृति को अपनाए हुए चल रहे हैं। तो इस कारण से ये जो नई शिक्षा प्रणाली को रचा गढ़ा बसा गया, उसके केंद्र में पहली बार भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय रहन सहन, भारतीय टेक्नोलॉजी, सारी चीजों को केंद्र में रखकर इस नई शिक्षा प्रणाली को का गठन किया गया। तो यदि हम इसके मेन फीचर्स पे बात करें तो हाउ द जर्नी स्टार्ट्स, तो सबसे पहले ये दिया गया कि भाई व्हाट शुड बी द विजन फॉर द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। नई प्रणाली को गठित करने में पहला पॉइंट लिया कि व्हाट शुड बी द विजन फॉर द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें यह लिया गया कि टच द हार्ट ऑफ सिटीजन। सबसे पहले हम भारतीय व्यक्ति के दिल को न छुएं, तब ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं होनी चाहिए जैसी कि पूर्व की शिक्षा प्रणालियों में था। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नीड्स, हमारी आवश्यकताओं की कैसी पूर्ति हो, दूसरा पॉइंट रखा गया। तीसरा पॉइंट ये रखा गया कि निष्पक्ष और न्याय संगत, यानी न्याय प्रणाली जो थी वो भी आप देखेंगे कि आज लैंड एक्ट हो चाहे राजस्व एक्ट हो, वो कार्नावालिस के, डलहौजी के, है ना, उसके अलावा बैटिंग के, मैकाले के, उन लोगों ने जो वायसराइज लोगों ने जो रूल्स बनाए थे कमोबेश भारतीय संविधान में, उनको बहुत सारों को शामिल आज भी कर लिया गया। तो उनको जो है किस तरह से मॉडिफाई करना, इन चीजों को भी केंद्र में किया गया। अच्छा, दूसरा क्या था कि शिक्षा का अधिकार सभी को मिले, यानी जिसको हम कह रहे राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, और कम से कम प्राइमरी और मिडिल जो है शिक्षा जो है वो इट शुड बी फ्री फ्रॉम, ये निशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। प्राइमरी मिडिल को जो है निशुल्क शिक्षा के दायरे में लिया गया, और मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी जिसको हम कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसमें चरित्र का सर्वांगीण विकास और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। यानी ये पूरी प्रणाली का अध्ययन करने के लिए पहले हमारे शिक्षाविदों ने जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट के इन बिंदुओं को केंद्र में रखा। इसके साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी यूनेस्को ने 1996 में बनाया था। इंटरनेशनल एजुकेशनल कमीशन वाज फॉर्म्ड बाय द यूनेस्को इन 1996, और जिसके चेयरपर्सन थे जैक्स केलर्स थे। और उस रिपोर्ट को भी हमने इस नई शिक्षा प्रणाली के गठन में हमने सामने रखा। तो इसमें क्या चीज थी मेन, इसमें इन्होंने क्या किया कि इस रिपोर्ट को 4 भागों में डिवाइड किया, और जानने के लिए सीखना, यानी सबसे पहले कहते हैं ना टू लर्न टू नो, यानी जानने के लिए सीखना। और इसके पीछे की धारणा क्या थी कि ज्ञान का एक मुख्य हिस्सा बने, ज्ञान हमारा जो है मुख्य हिस्सा बने। करने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, यहाँ पर एक व्यावसायिक कौशल, अभी आप सभी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में कौशल विकास का पाठ्यक्रम भी पढ़ते हैं, और कौशल विकास के प्लेसमेंट सेल्स भी गठित होते हैं। तीसरा पॉइंट था साथ रहने के लिए सीखना, है ना, मतलब अन्यों की समझ विकसित करना, यानी सभी की समझ जो है वो विकसित करना, और होने के लिए सीखना, यानी यहाँ व्यक्तित्व विकास की बात आ गई। तो जो इंटरनेशनल एजुकेशन आयोग 1996 में यूनेस्को द्वारा बनाया गया था, उसमें उन्होंने ये 4 बिंदु रखे थे। हमने जब नई शिक्षा प्रणाली का ड्राफ्ट तैयार किया तो इन बिंदुओं को भी हमने सामने रखा था। इसके साथ ही
ड्राइंग फ्रॉम इंडियन हेरिटेज, यानी भारत के विरासत की देन, भारत के जो विरासत की जो देन थी उसको नई शिक्षा प्रणाली के ड्राफ्ट में स्थान देना, ये वाला बिंदु भी हमने इसमें रखा। तीसरा था टेकिंग फॉरवर्ड द एजेंडा ऑफ प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसीज, यानी जो पिछली शिक्षा नीतियों जो थी उनको आगे लाना, उनको मॉडिफाइड करने पर, है ना। हमने अभी देखा कि पिछली शिक्षा प्रणालियों पर गुणवत्ता का ध्यान नहीं था, यानी क्वालिटी एजुकेशन नहीं था, और क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने से आज देश में ये बहुत सारी समस्या आई। इसके अलावा जो अगला बिंदु था वो था अलाइनमेंट विद द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी वैश्विक लक्ष्यों के साथ हमें जो है संरेखण करना है, वैश्विक लक्ष्यों के साथ में, ये पॉइंट एक इसमें रखा गया। अगला बिंदु इसमें था एन इंटीग्रेटेड येट फ्लेक्सिबल अप्रोच टू एजुकेशन, यानी आज आप जो नई शिक्षा प्रणाली प्रदेश में हमारे यहाँ आई है, आपने देखा होगा कि छात्र को इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमने दी है। जहां पर बच्चा जो है एक आयाम में पढ़ता था, अब वो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैकल्टी के रूप में वो अध्ययन कर सकता है, यानी फ्लेक्सिबल अप्रोच टू एजुकेशन, इस पॉइंट को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्थान दिया गया। और आज हम महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में देख रहे हैं कि जो बच्चा छात्र पाठ्यक्रम का चयन कर रहा है तो वो इंटर फैकल्टी है, जेनरिक सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट्स, है ना, वैकल्पिक सब्जेक्ट, इसमें आप देखोगे कि स्टूडेंट को बहुत सारी चॉइस है पढ़ने की। यद्यपि महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की अनुपलब्धता के कारण कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां निश्चित रूप से आ रही है, और इसमें हम लोग शिक्षाविद और सरकारें जो है सतत मनन और चिंतन कर रही है, क्योंकि कोई भी शिक्षा प्रणाली एक दिन में तैयार नहीं होती है। इस पर बार बार गहन मंथन, चिंतन और मनन होता है, क्योंकि नई शिक्षा प्रणाली का जो टारगेट है वो 2035-40 तक रखा गया। तो इस तरह के कई समस्याएं आएगी, कई समाधान आएंगे, और अल्टीमेटली जब ये शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से तैयार होकर कई संशोधनों के बाद हमारे साथ आएगी, तो हम देखेंगे कि भारतीय मानस और यहाँ का जो छात्र है वो पूर्ण रूप से भारत को केंद्र में रख के तैयार हो चुका है। तो ये इस शिक्षा प्रणाली में इस चीज को बहुत अच्छा स्थान दिया गया। अगला बिंदु इसमें रखा गया था, इसमें 10 बिंदु बनाए थे। ये छठा पॉइंट इसमें था एन इंटीग्रेटेड, छठा पॉइंट था इसमें लिबरल आर्ट्स अप्रोच इन हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा में जो है वो बिल्कुल एक लिबरल दृष्टिकोण हो। इसी पॉइंट का सप्लीमेंट्री पॉइंट कह सकते हैं हम। इसके बाद फोकस ऑन हाई क्वालिटी रिसर्च, ये बिंदु जो है हमारे यहाँ पर बहुत लंबे समय से कमजोर रहा, यानी शोध जो थी हाई क्वालिटी की रिसर्च, तो हाई क्वालिटी की रिसर्च के कारण हमारे यहाँ पर न वो संसाधन रहे, न वो प्रयोगशालाएं रही, न ऐसे विश्वविद्यालय तैयार हो पाए जहाँ के हमारे यहाँ की प्रतिभा उच्च क्वालिटी की रिसर्च कर सके। और प्रीवियस ईयर्स में यही एक समस्या रही कि हमारी प्रतिभाएं जो थी वो विदेशों में पलायन कर गई। तो इस बार इस प्रणाली में एनआरएफ को केंद्र में रखा गया है, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है इसकी बात इस शिक्षा प्रणाली में कही गई है, यानी आने वाले समय में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यदि बनता है प्रदेश में, देश में, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, हमारे यहाँ के जो जीनियस इंटेलेक्चुअल्स है, वो हमारे देश में, हमारी लेबोरेटरी में, हमारे विश्वविद्यालय में वो कार्य करेंगे, और उस शोध का जो सदुपयोग होगा, उसका जो यूज एंड एप्लीकेशन होगा, वो हमारे देश में होगा। ये इस बिंदु को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, बिकॉज टुडे जो भी हम टेक्नोलॉजी को विदेशों से परचेस कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी एक डॉलर और पाउंड्स देके हम उस रिसर्च को हमारे एप्लीकेशंस में प्रयोग कर रहे हैं,
जिस रिसर्च का आधार हमारा जीनियस, हमारी गुणवत्ता और हमारा हेरिटेज है, यानी हम अपनी संस्कृति और हमारी गुणवत्ता को हमारे यहाँ स्थापित नहीं कर पाए, ब्रिटिश उसको ले गए और वहां से वापस हम खरीद रहे हैं। तो ये इसीलिए हमने क्या किया कि फैसिलिटेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण को सुगम बनाना। यानी शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण में बड़ी दिक्कतें थी, यानी मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ेगा। अंतर ये था कि केमिस्ट्री वाला पूरी तरह से या लाइफ साइंस वाला पूरी तरह से मैथमेटिक्स को नहीं जानता, तो यदि वो मैथमेटिकल इनोवेशन करना चाहता था तो उसको मैथमेटिशियन का सहारा लेना पड़ता था, या फिर वो अपने कमजोर ज्ञान से वो हाइपोथेसिस वो शोध नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमने शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण को सुगम बनाने के लिए इस बिंदु को इसमें समाहित किया था। इसके अलावा फैसिलिटेटिंग नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय विकास को किस तरह से सुविधाजनक बनाना। यानी केवल शिक्षा का उद्देश्य, अभी तक की प्रणालियों में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ शिक्षित करना था, ओपन फॉर ऑल, यानी साक्षरता का प्रतिशत किस तरह से बढ़ाया जाए, है ना। लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए एक देश में होड़ होती थी कि किस तरह से हम 100% लिटरेसी में आ जावे, लेकिन लिटरेसी रेट तो बेशक देश में बढ़ता गया, लेकिन उसके कारण हम शिक्षित तो हो गए, लेकिन हम वहां पर सहानुभूति और सभ्यता संस्कृति को तब तक हम खो चुके थे। हम शिक्षित कैसे हुए थे? जानी जानी यश पप्पाताई। तो वही समस्या जो है लंबे समय तक चलती रही। और फिर लास्ट था कि इंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन इन स्पिरिट एंड इंटेक्ट, यानी नीति का क्रियान्वयन पूरी तरह से सुनिश्चित करना। यानी हमें कैसे इंश्योर करना है। अभी शिक्षा प्रणाली 2020 लागू हुई है, हम 15 वर्षों तक इसमें चिंतन मनन करें, तब जाके इसका कंप्लायंस, इसका एग्जीक्यूशन हो पाएगा। तो ये अभी हमारे पास में एक बहुत लंबा समय है। तो अब निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान की जब हम बात करें तो भारत के पास में जो ज्ञान था, जो भारतीय मनीषी थे, वो कोई विषय के नहीं होते थे। यानी आज हम देखते हैं कि प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड सो ऑन। पहले ऐसा नहीं था। जो वहां पर हमारे भारतीय ज्ञान था उसमें दर्शन, कला, तर्क, व्याकरण, कानून, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, ये सभी चीजें एक ही इंटेलेक्चुअल को नॉलेज था। आप देखेंगे कि पहले विषयवार वैज्ञानिक नहीं होते थे, कि वराहमिर जो थे उन्होंने फिजिक्स पे भी किया, एस्ट्रोनॉमी पे भी किया, केमिस्ट्री पे भी काम था, गणित पे भी था, है ना। उसके बाद बायोलॉजी पे भी था, वनस्पति पे भी था। तो जिसे हम बात वराहमिर की करें तो वराहमिर आज के संदर्भ में साइंटिस्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन। जिन लोगों ने वराहमिर को पढ़ा होगा तो मैं सोचता हूं कि वराहमिर को अवश्य पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे कि आज हम वराहमिर को ऐसा मानते हैं जिनकी बर्थ स्थली उज्जैन ही मानी जाती है। उज्जैन के पास एक कायथा छोटी सी जगह है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन यदि वराहमिर के बृहद जातकम और पंच सिद्धांतिका को अगर आप पढ़ें, यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो उनको अवश्य पढ़ें, क्योंकि अब उनके कई भाषाओं में उनके ट्रांसलेशन आ गए। यद्यपि हम ये मानते हैं कि जो आधुनिक पंचांग है ना, जिसमें हम तिथि मुहूर्त राशियां देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करते हैं, वो वराहमिर की देन है। तो हम वराहमिर को लीनियरली जान रहे हैं। वी आर नोइंग वराहमिर ओनली इन वन डायमेंशनल, while he was the scientist of multi-dimensional। आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी हो गया, लेकिन ग्राउंड वाटर जिसको हम कहते हैं ना, ग्राउंड वाटर सर में जमीन के अंदर कितनी गहराई पर पानी आएगा, जिसको हाइड्रोलॉजिस्ट करते। आजकल आप मकान बनाते हैं तो कई बार आता है कि बोरिंग फेल हो गया हमारा,
हमने 800 फीट की गहराई तक भी जो है बोरिंग किया, लेकिन बोरिंग फेल हो गया। व्हाई? बिकॉज आपके पास आज भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जमीन की कितनी गहराई में पानी आएगा। हाइड्रोलॉजिस्ट जो है वो बड़े बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट फेल हो जाते। यदि आप वराहमिहिर को पढ़ेंगे तो उन्होंने इसमें इस तरह के नियम दिए थे कि कितनी गहराई पर पानी किस जमीन में रहेगा। ये तो उनकी आप देखेंगे कि जियोलॉजी या हाइड्रोलॉजी की खोज थी। दूसरा अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हम वराहमिहिर को देखें तो उन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कहा था कि बीज को किस तरह से हम जर्मिनाइज्ड करें और उसको जमीन में बोते हैं तो किस तरह की फसल आएगी। ये एक्सपेरिमेंट आज भी हो रहा है। वराहमिहिर संहिता को सामने रखो और आप आधुनिक विज्ञान को, हम आधुनिक विज्ञान को या आधुनिक साइंटिस्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी भारतीय दर्शन और संस्कृति में इन चीजों का समावेश था जिनको आज हम नहीं कर पाए। आज इनको डिमॉन्स्ट्रेट और डेमो करने की आवश्यकता है। इसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का कुछ वर्ष पहले एक जापानी को मिला था, रसायन शास्त्र का। उन्होंने लिखा था, उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो रंगों के विकर्णीय मिश्रीकरण, इसको हम कहेंगे कि डायग्नटाइजेशन ऑफ कलर थेरेपी, यानी रंगों का विकर्णीय मिक्सीकरण किया गया था कलर्स का। उस पर उनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने अपनी उस पूरे आलेख में लिखा है कि रंगों को मिक्स करने की डायग्नोटाइजेशन को प्रक्रिया को मैंने वराहमिहिर की वृहत जातकम से पढ़ा। एक भारतीय थे, उन्होंने शताब्दियों पहले रंगों को मिक्स करने की प्रक्रिया को लिखा था। और आपने देखा होगा कि कॉम्बिनेट्रिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसको हम सादी भाषा में कहें, कॉम्बिनेट्रिक्स जो है वो एक आधुनिक ब्रांच है गणित की। यदि हम बैक साइड जाएं तो हम इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से शुरू करें तो आप देखेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर, कलर्स थेरेपी के ऊपर वराहमिहिर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार की पुस्तक में उनका ये जिक्र है। इसी तरह से आप फिजिक्स को देखेंगे, आप बॉटनी को देखेंगे, कृषि को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वराहमिहिर इज द साइंटिस्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स इवन ऑन टुडे। तो ये हमारे जो प्राचीन आलेख थे वो सब विदेश में चले गए और हमारा भारतीय स्टूडेंट जो है उनको पढ़ नहीं पाया। तो इन चीजों को इस नई शिक्षा प्रणाली में भरपूर स्थान दिया गया। आज आप देखते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय की हम जब बात करते हैं, है ना, पाइथागोरस का प्रमेय हर बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत कम जानकारी होगी कि पाइथागोरस से 800 साल पहले भारतीय गणितज्ञ, भारतीय एस्ट्रोनॉमर बोधायन ने ये कार्य कर लिया था। लेकिन बोधायन का नाम आज कहीं पुस्तकों में नहीं मिलेगा। यद्यपि लंबे समय से हम लोगों ने बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले MHRD को रिप्रेजेंट किया था कि भाई ये सारी चीजें जो है ये तो भारतीय मनीषी खोज चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि NCERT ने बहुत समय बाद अपनी विद्यालय की पुस्तकों में बोधायन पाइथागोरस शब्द को यूज किया था। बोधायन जो है, यहाँ आप देखेंगे कि अंतर ये था कि डायगोनल की जब बात हम करते हैं और हाइपोटेनस की बात जब पाइथागोरस द्वारा की जाती है। वहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसको हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं, जिसको कर्ण बोलते हैं। और यदि हम उसको रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लें तो उसका हिंदी में नाम विकर्ण हो जाता है। यहाँ पर हाइपोटेनस और यहाँ डायगोनल, यहाँ पर हम उसको क्या बोल रहे हैं, विकर्ण। और निश्चित रूप से जब हम उसके दो पीसेस करेंगे, when we will divide a right angle, when we will divide a rectangle or square, we will get two right angle triangles। तो वहां पर जब बोधायन ने
शूल सूत्र के माध्यम से ये सारी की सारी बातें कह चुकी। और वही जो बोधायन डिस्कवरी थी उसको क्या किया गया 800 साल बाद, अंतर ये था कि वहां पर एक आयत और एक वर्ग था, या एक समकोण त्रिभुज, उसके दो टुकड़े कर लिए और पाइथागोरस ने अपने नाम से उसको पेटेंट करा लिया। तो ये एक लंबा समय, लगभग हमें 800 वर्ष लगा कि भाई ये डिस्कवरी, ये खोज, ये इनिशिएट भारतीय ने किया था। इसी तरह से आप फिबोनाची को देखें, पिंगला को देखें, आर्यभट्ट को देखें, है ना। उसके बाद जैसे केरल में कैलकुलस की खोज है। तो ये सारी की सारी जो हमारी आज मॉडर्न मैथमेटिक्स की डिस्कवरीज हैं, यद्यपि उनका आधुनिकरण यूरोप ब्रिटेन के साइंटिस्टों ने किया है। विज्ञान को, गणित को उन्होंने अत्याधुनिक करने में उनका योगदान है, लेकिन उसकी जड़ में यदि हम जाएं तो उन्होंने हमारे भारतीय दर्शन और संस्कृति को ही सबसे पहले तराशा। तो इस तरह से यानी शिक्षा क्रम में भारतीय ज्ञान व्यवस्था को शामिल करना, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य लिया गया था। और अभी जिस मैंने एनआरएफ की बात कही, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की, तो आप देखेंगे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की सबसे पहले बात करी थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन लेट एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सबसे पहले राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की बात कही थी रामानुजन के संदर्भ में। जब उन्होंने रामानुजन को पढ़ा, रामानुजन की गणितीय खोज देखी, उनके एप्लीकेशंस देखे, तो उन्होंने सबसे ये कहा कि रामानुजन के नाम पर 100 करोड़ की लागत से डीआरडीओ, आरएनडी, एमपी कास्ट, तमाम जितनी भी देश की विज्ञान गणित की एजेंसियां हैं, वित्तीय एजेंसियां हैं, प्रशासनिक एजेंसियां हैं, वो रामानुजन के नाम पर 100 करोड़ की लागत से एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का विकास करें, और जिसमें गरीब बच्चों को, तरुण बुद्धिजीवियों को, हमारे ग्रामीण प्रतिभाओं को, जो अभाव में कहीं बाहर नहीं आ पाए, जिस तरह से के रामानुजम का जो इतिहास था वो भी यही था। वो एक छोटी सी जगह में, अभाव में, गरीबी में पड़े, उनकी खोजों को उस समय के ब्रिटिश कालीन जो प्रोफेसर थे वो पहचान नहीं पाए। हमारे देश में रिसर्च का अभाव था, और अल्टीमेटली क्या रहा कि रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाया गया। कैम्ब्रिज में उन्होंने जो कार्य किया था वो उनका इतना बड़ा कार्य था। When he was invited at Cambridge University, at that time कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो सारे रूल्स रेगुलेशंस थे उनको रामानुजन के लिए शिथिल किया गया। वहां की लोकसभा, राज्यसभा में तमाम नियमों को संशोधित किया गया, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो थी, वहां किसी भी छात्र को अध्ययन के लिए उसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होना आवश्यक है। यानी इट वाज मैंडेटरी फॉर ए स्टूडेंट्स टू गेट एडमिटेड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी if he is graduate. So the House of Lords and House of Commons and British government and Cambridge universities modified their rules and the regulation. Their constitution was modified for a 12th fail student. क्योंकि रामानुजन को जब कैम्ब्रिज बुलाया गया तब वो बाहर, जब वो 12th फेल थे, वो 12th 2 बार फेल हुए, लेकिन उनके कार्यों को जब ब्रिटेन में भेजा गया तो ब्रिटेन के कई गणितज्ञ जो है उनके कार्य को समझ नहीं पाए थे, बिकॉज लार्जली ही वाज सेल्फ एजुकेटेड, वो सेल्फ एजुकेटेड थे। और उनके कार्य को जब लगभग 100 पेज की उनकी एक हस्तलिखित पांडुलिपि जब ब्रिटेन पहुंची तो बहुत सारे बड़े बड़े गणितज्ञों ने उनको पढ़ा। दे स्टडीड, दे कुडंट अंडरस्टैंड। लिटिलवुड नहीं समझ पाए, वाटसन नहीं समझ पाए, हिलबर्ट नहीं समझ पाए कि ये हस्तलिखित जो 100 पेज एक भारत के गरीब बच्चे से आए जो ये कह रहा है कि मैं 12वीं फेल हूं, इसने क्या लिखा है। तो हार्डी ने उनका अध्ययन किया, और हार्डी ने कहा कि ये 12th फेल बच्चे ने वो काम कर लिया है
जो आने वाले कम से कम 2000 सालों तक लोग नहीं कर पाएंगे। और इमीडिएटली ही वाज इनवाइटेड इन कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज उनको बुलाया गया रामानुजम को, और वहां हार्डी के साथ उन्होंने 1914 से 1919 तक बहुत सारे कार्य किए। जो कार्य रामानुजम ने किए हैं उसमें यदि हम उनके कार्यों को हम 3 विभागों में बांट सकते हैं। पहला कार्य वो जो 12th फेल थे या मैट्रिकुलेट थे और उन्होंने भारत में रह के किया। दूसरी उनकी वो रिसर्च थी जो उन्होंने भारत में रह के करी। एट दैट टाइम ही वाज 12th डिस्क्वालिफाइड। और तीसरा कार्य वो है जो उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ज्वाइंटली किया जीएच हार्डी के साथ में। तो जीएच हार्डी जो उस समय के एक बहुत बड़े ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, ट्रिनिटी कॉलेज के एक उस समय के डाइवर्जेंट सीरीज के बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे। वो ये लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि ये रामानुजम जब यहाँ आया तो हमने देखा कि ये लड़का पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में बसा था। ही वॉज प्योर वेजिटेरियन, नो यूज ऑफ लिकर, है ना, क्योंकि माइनस टेम्परेचर में वाइन लेना वहां कंपलसरी होता है। बट ही डिडंट टच द वाइन, न नॉनवेज लिया। डेली वो पैदल रहते थे, उन्होंने कभी चप्पल अपनी नहीं पहनी, और पहले वो स्नान ध्यान करते थे, अपनी फिलॉसफी, अपनी पढ़ने के पश्चात भारत फिर वो मैथमेटिक्स को पढ़ते थे। वो कहते थे कि एन इक्वेशन हैज नो मीनिंग फॉर मी अनलेस इट एक्सप्रेस द थॉट ऑफ गॉड। जो हम नई शिक्षा प्रणाली की आज बात कर रहे हैं 2020 की, उसको रामानुजम ने आज से लगभग 125 साल पहले कहा था कि कोई समीकरण, कोई खोज, कोई हमारी डिस्कवरी तब तक हमारे लिए उपयोगी नहीं होती जब तक हमने अपने धर्म, अध्यात्म, हमारी संस्कृति, सभ्यता को उसको केंद्र में नहीं रखा। यानी उनका आशय, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है। उनका ये कहना था कि अंक जो है, हमारे अंक जो है वो आध्यात्मिक है, दे आर मिस्टीरियस, वो जो है रहस्यमयी अंक है। हमारी समीकरणें जो है उसमें ईश्वर का दर्शन होता है। हमारे नंबर्स जो हैं उसमें हमें अपनी कल्चर की स्टडी होती है। तो उनका कहना था कि सारी की सारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, कला, रीजनिंग, व्याकरण, ग्रामर, these are the reflection of our Indian culture। और वो कहते थे कि जब तक हमने हमारी सभ्यताओं, संस्कृति और खोज को हमारे देश में आत्मसात नहीं किया, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली और ऐसी समीकरण और ऐसी इक्वेशन का क्या उपयोग है। 125 साल पहले की गई उनकी बात को आज नई शिक्षा प्रणाली में स्थान दिया गया है। और आप देखेंगे कि लगभग 5 वर्ष तक हार्डी और रामानुजन ने गणित पर कार्य किया। हार्डी उनको समझ ही नहीं पाते थे। वो कहते थे ये व्यक्ति रामानुजम जो है, ही इज बिजी इन नंबर्स। वो जो है ब्रिटिश की सभ्यता और संस्कृति को ब्रिटेन में रहते हुए भी आत्मसात नहीं करते हैं। वो भारतीय चिंतन के अनुसार कैम्ब्रिज में रह रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि अंकों में वो कैसे अध्यात्म और रहस्य को ढूंढ पाते हैं। बहुत लंबे समय तक हार्डी जो है वो ये कहते रहे। उन्होंने रामानुजम की गणित को स्वीकार किया, उनके धर्म, अध्यात्म, संस्कृति को हार्डी ने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन हार्डी, रामानुजम तो 1920 में चले गए, है ना, 26 अप्रैल 1920 को रामानुजम चले गए। लेकिन उसके लगभग 26 वर्षों तक हार्डी रहे, और हार्डी लंबे समय तक जब पढ़ते रहे तब उन्हें समझ में आया कि भारत का दर्शन, भारतीय गणित एक बहुत बड़ा रहस्य है। जिस चीज को हार्डी ने लंबे समय तक क्रिटिसाइज किया,
उसको उन्होंने रामानुजम की मृत्यु के 26 साल बाद स्वीकार किया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर, जीएच हार्डी एक्सेप्टेड, वहां की सारी चीजों को, भारत की चीजों को उन्होंने स्वीकार किया। एंड ही, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी एक लिखी। उस ऑटोबायोग्राफी में उनको बहुत गिल्ट फील हुआ, उनको अपराध बोध हुआ कि मैंने रामानुजम को जीते जी उसकी धर्म संस्कृति को अस्वीकृत किया। तो उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आप कभी पढ़े, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ मैथमेटिशियंस एपोलॉजी। ये हार्डी के द्वारा लिखित गई है। अ मैथमेटिशियंस एपोलॉजी, it is a autobiography written by G.H. Hardy on the basis of Ramanujan and Indian culture। आप देखेंगे कि ब्रिटिश के एक बहुत बड़े गणितज्ञ ने कितने लंबे वर्षों बाद उस चीज को स्वीकार किया। तो अगर हम इस तरह से रामानुजन की डिस्कवरी को देखें, तो रामानुजन का जो दर्शन था वो नई एजुकेशन पॉलिसी में पूरा का पूरा उसको इंक्लूड किया गया, केवल रामानुजम का नहीं। बोधायन, पाइथागोरस, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इसीलिए ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वी प्रिपेयर्ड अ सिलेबस फॉर अंडर ग्रेजुएशन का। हम लोगों ने सिलेबस लगभग 60 बैठकें की, और 60 बैठकों के बाद में अभी आप लोग यदि बीएससी के छात्र भी हो सकते हैं यदि, तो आप देखेंगे कि पहली इकाई जो है, उस पहली इकाई में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि भारतीय कंट्रीब्यूशन क्या था। यानी पहली बार हमने बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को शामिल किया गया। आप लोग देखेंगे कि बीएससी के पेपर्स में रामानुजम की जीवनी आ चुकी है, रामानुजन के कंट्रीब्यूशन आ गए हैं, रामानुजन की जो नंबर थ्योरी है उसको भी हम लोगों ने शामिल कर लिया है। कितना टाइम लगा हमें? 1920 से 2020, रामानुजम की मृत्यु के 100 साल बाद वी कुड इंट्रोड्यूस रामानुजम इन आवर सिलेबसेस। अभी हम पाठ्यक्रम में एक थोड़ा सा स्थान रामानुजम के लिए लाए हैं, लेकिन रामानुजम वाज नॉट ओनली अ मैथमेटिशियन, ही वाज ए मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। हर व्यक्ति को रामानुजन पढ़ना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स में भी रामानुजम की जीवनी रखी है कि किस तरह से आज कई बच्चे कहते हैं कि साहब अभाव थे, पढ़ नहीं पाए, कमरा हमें नहीं मिला, पढ़ नहीं पाए, पुस्तक हमें मिली नहीं, हम पढ़ नहीं पाए, हमें जो है फीस भरने की जगह नहीं थी, हम पढ़ नहीं पाए। तो इस तरह के स्टूडेंट जो पूर्णता अभाव में आज ये कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं पढ़ पाए, उन्हें इस चीज को रीथिंक करना पड़ेगा कि रामानुजम जो है, ही वॉज एट द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ पॉवर्टी। वो गरीबी की पराकाष्ठा में रहे, जिनके पास जो उस स्टेशनरी को वो रात को इकट्ठी करते थे कचरे के डस्टबिन में से, जिनकी एक तरफ लिख दिया जाता था और दूसरी तरफ कोरी होती थी, आज हम फेंक देते हैं। रामानुजम उस स्टेशनरी को कलेक्ट करते थे, क्योंकि उस दौर में कोई फ्री शिक्षा नहीं थी, उस दौर में प्रदेश देश की कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, कोई मेरिट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आज तो बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को है, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी हमारी नई प्रतिभा, नई जनरेशन जो है वो मेहनत नहीं कर रही है। आप पूरी तरह से, बच्चे कहते हैं कि साहब 3 घंटे हम पढ़ते हैं, आप 10 से 12 घंटे पढ़िए, आपके पास कहीं कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू फुल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी आपको पूरी मिल रही है, रहने के लिए सरकार आज आपको स्थान दे रही है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो मेहनत नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगल नहीं करता, जबकि वो गरीबी की पराकाष्ठा में उन्होंने इतना पढ़ा कि आज आप देखेंगे कि रामानुजम जो अपनी मृत्यु के समय लगभग 4,500 थ्योरम छोड़ गए थे, उन 4,500 थ्योरम में से लगभग 60% थ्योरम ही आज विदेशों में हल कर पाए। आज भी हम रामानुजम को कहाँ पढ़ रहे हैं? हम पढ़ते हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम ढूंढते हैं, हम खोज नहीं पा रहे हैं। यानी आप देखेंगे कि रामानुजम आज आए हैं, अभी भी आप देखेंगे कि इफ यू विल गो टू द स्पेक्ट्रम
of his discoveries right from primary education to research. तो आज भी आपको लगेगा कि हमारे शिक्षाविद जो है, हमारे एजुकेशनिस्ट है, हमारे प्रोफेसर्स हैं, उनकी एक लिमिटेशंस है, उनकी सीमाएं कहीं है कि क्योंकि हम मॉडर्न मैथमेटिक्स को तो नकार नहीं सकते। हमारे प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने खोज जरूर करी, लेकिन आधुनिक बीज गणित को यदि हम देखें तो उसके केंद्र में जरूर भारतीय गणित है, लेकिन आधुनिक बीज गणित, आधुनिक गणित, आधुनिक टोपोलॉजी है ना, उसके बाद कॉम्प्लेक्स रियल एनालिसिस, फिक्स पॉइंट थ्योरी, मैथमेटिकल मॉडलिंग, इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमने इस पे काम तो किया है, लेकिन काम इसमें विदेशों में ज्यादा हुआ है। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि विदेशी विज्ञान और गणित को नकार दिया जाए। किसी की भी कोई चीज हो, किसी भी देश की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो, वी शुड एक्सेप्ट इट, हमको इसको लेना चाहिए और हमको भारतीय संदर्भ में विदेशी खोजों की डिस्कवरी करनी चाहिए। हम कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां हम देखते हैं कि स्प्रिंजर पब्लिकेशन की मोटी मोटी किताबें जो रामानुजन के अनसॉल्व्ड प्रमेयों के ऊपर लिखी गई है, वो पैक्ड रहती है, हम उनको पर्चा नहीं पलटा सकते। यानी यदि आप खरीद रहे हो तो ही आप अंदर उसको पैच पलटा सकते हो। ये क्योंकि सारा का सारा जो पब्लिकेशन है वो आप देखेंगे प्रिंस्टन, कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी, यूरोप, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, है ना, वही के मैथमेटिशियंस वर्क कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ब्रूस बर्न, एस्की और एंड्रूज, इनका वर्क है। इसमें से एक अभी चले गए, शायद एस्की चले गए, है ना, लेकिन देहोक्राज 95, ये 95 वर्ष के ऊपर के कुछ गणितज्ञ हैं, और ये इनकी पुस्तकों को हम वी कैन नॉट परचेज। व्हाई? बिकॉज वी हैव परचेसिंग कैपेसिटीज, वी आर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, हमारे पास एक क्रय की सीमा है। यूरो, डॉलर, यूरो, पाउंड 90 हजार रुपए में, 1 लाख रुपए में वो पुस्तक को खरीदना हमारी लाइब्रेरी के लिए कठिन है। सो वी कैन नॉट परचेज। तो आज भी विदेशों में जो कार्य लोग कर रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो नई कमेटी आई थी, जिस अभी मैंने जो बताया था आपको कि ये जो 11 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, इसमें से एक सदस्य जो है उन्होंने अमेरिका की सदस्यता ले ली है, दो ही बिलोंग्स टू इंडिया, वो राजस्थान जयपुर के हैं, एंड ही इज मास्टर ऑफ नंबर थ्योरी, ही इज द रिसिपिएंट ऑफ फील्ड मेडल व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। मंजुल भार्गव को अगर आप पढ़ेंगे तो वो प्रिंस्टन अमेरिका में ही उन्होंने उसकी सिटीजनशिप ले ली। जब उनको फील्ड मेडल मिला, ही वाज हार्डली 41 ईयर। फील्ड मेडल गणित का नोबेल पुरस्कार है, और चूंकि उनको भारतीय दर्शन अध्यात्म का बहुत जानकारी थी, उनका मंजुल भार्गव की जो स्कूल शिक्षा थी वो जो है जयपुर में हुई, और संस्कृत बाहुल्य ये परिवार था, उन्होंने संस्कृत को भी पढ़ा, धर्म अध्यात्म को भी पढ़ा। आप देखेंगे कि मंजुल भार्गव आज भी कई बार अपनी सिग्नेचर हिंदी में करते हैं, और उनकी वो एक ड्राफ्ट कमेटी के 4थे नंबर पर मंजुल भार्गव का उसमें नाम है, ही इज मास्टर ऑफ नंबर थ्योरी, और उन्होंने रामानुजन के ऊपर बहुत कार्य किया है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि रामानुजन का जो कार्य है वो एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस, मेडिकल साइंस और इसरो, इस सब में रामानुजन के कार्य का अनुप्रयोग हो रहा है, और ये सारा कार्य हम भारतीय लोग ऊंची दरों पर परचेस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इफ यू विल categorize the contribution of Ramanujan right from magic square, squaring a circle, prime number theory, composite number, hypergeometric series, infinite series, definite integral, और definite integral से approximation to pi, approximation to pi से modular equation, और modular equation से mock theta function, इतना बड़ा कार्य है उनका। ये मैंने आपको कुछ contributions बताए उनके। यदि इनके if you will go through the uses and application in mathematics, तो आपको लगेगा कि केमिस्ट्री में भी एप्लीकेशन है, बॉटनी में भी है, zoology में भी है, बट
हम तो अभी रामानुजम की जीवनी को भी नहीं पढ़ पाए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 100 years हमने रामानुजम को अभी डेसिमल में भी नहीं पढ़ा है। तो यद्यपि हम समझते हैं कि हम रामानुजम को 2012 से ये सेमिनार, जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय गणित खोजा, उसके बाद से प्रतिवर्ष 2012 से 2021 समाप्त हो रहा है, 2022 आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि लगभग एक दशाब्दी तक हमने रामानुजन को सेमिनार, गोष्ठी और कार्यशालाओं में पढ़ा। अब 10 वर्ष बाद हम उनको नई शिक्षा नीति के मार्फत से एक 5% स्थान हमारे सिलेबस में लाए। अभी भी हम रामानुजम को 2% ही लाए। स्टिल वी हैव नो बुक्स, नो लिटरेचर, नो रिसर्च। क्यों? थोड़ी सी इसमें दिक्कत हमारी अभी एक ये भी चलती है कि जैसे अभी हमने सिलेबस बनाया बीएससी का, एमएससी का, अब फॉर एग्जांपल इंदौर विश्वविद्यालय में सिलेबस बनेगा, तो इंदौर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी, वहां का चेयरमैन भी कमिटी में होगा। वो क्या कहेगा कि सर मेरे यहाँ का जो कॉलेज का प्रोफेसर है या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, he has not studied astronomy or number theory, so we should keep this subject as optional। तो क्या पोजीशन हुई? क्योंकि हो क्या रहा है कि मैंने गणित में जो एमएससी पीएचडी में पढ़ा, मैं ये चाहूंगा कि उसको मैं अपने पाठ्यक्रमों में लाऊं, अदरवाइज मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा या अच्छे से मेहनत नहीं कर पाऊंगा। तो हमने अभी भी क्या किया कि लंबे स्ट्रगल के बाद मैंने बहुत संघर्ष किया अभी नई प्रणाली में, बिकॉज नंबर थ्योरी जो है हमारे यहाँ या तो सदर्न इंडिया में मिलेगी या नॉर्दर्न इंडिया में, यानी उत्तर भारत और थोड़ा सा दक्षिण भारत में तो रामानुजम के कारण नंबर थ्योरी बहुत रिच है। तो वहां तो नंबर थ्योरी जो है स्कूल एजुकेशन से शुरू हो रही है, तो बच्चा रामानुजम को मिडिल क्लास से पढ़ रहा है, बिकॉज दैट सब्जेक्ट इज देयर। हमारे यहाँ यदि हम देखें तो प्राइमरी में नंबर थ्योरी तो है नहीं, अंक ज्ञान जरूर है बच्चे का। यदि हम अपने कॉलेज एजुकेशन पे आए तो राइट फ्रॉम पास्ट 50 years नंबर थ्योरी वाज केप्ट एज एन वैकल्पिक सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा गया और उसको कहीं पढ़ाया नहीं गया। एमएससी में जब हम आते हैं तो अगेन दिस सब्जेक्ट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ ऑप्शनल पेपर्स, और बमुश्किल से कुछ महाविद्यालय या कुछ विश्वविद्यालय जो है नंबर थ्योरी को पढ़ा पा रहे हैं। और कॉन्सिक्वेंटली क्या हो रहा है कि न तो हम रामानुजम को जान पा रहे हैं और ना रामानुजम को पहचान पा रहे हैं, न उनकी रिसर्च हो रही। सो द नाउ द टाइम हैज कम कि नई शिक्षा प्रणाली इसीलिए आपके सामने सरकार ने रखी है कि अब आप मेहनत करें, चिंतन करें, मनन करें और हमारी भारतीय प्रतिभाओं को, जिसमें विशेष रूप से रामानुजम है, मैं कह सकता हूं कि रामानुजन ये एकमात्र ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने बहुआयामों के ऊपर विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी में उनकी प्रतिभाओं को नई शिक्षा प्रणाली में लिया गया है। और आज मैं सोचता हूं कि कल राष्ट्रीय गणित दिवस के मौके पर मैं आप सभी को इस मौके पर 134वीं उनकी जो है जन्म शती है और 2012 से ये 2021 इतने गणित राष्ट्रीय गणित वर्षों के अध्ययन के बाद मैं आप सभी को कल के शुभ अवसर पर अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मैं सोचता हूं कि आप एक बार नई शिक्षा प्रणाली के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को पढ़ें, उसकी रिकमेंडेशंस को पढ़ें, कमिटी के सदस्यों के बारे में पढ़ें, तो आपको ये लगेगा कि भारत सरकार ने बहुत मेहनत करी है। 5 वर्षों तक लगभग 17,000 रिकमेंडेशंस मंगवाई गई, उसके बाद ये पॉलिसी आई है। रामानुजम को पढ़ें, अध्ययन करें, शोध करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले ये भी आपके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मूलभूत ढांचे को आप 117 पेज की रिपोर्ट और 640 पेज के ड्राफ्ट को आप पढ़ें। तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समयों में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं,
हमने पूर्व में बहुत अन्याय किया है, अब हमें कुछ न कुछ रामानुजम के साथ न्याय करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि आने वाला समय निश्चित रूप से नई शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सभी ने मुझे इनवाइट किया। आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, HOD मैडम रेखा, जो लंबे समय से कई समय से प्रयास करती रहती है। कई बार मुझे कॉल करके वो रिमाइंड भी कराती रहती है, क्योंकि कल हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ नेक के सदस्य जो है वो 3 सदस्य टीम का ब्यौरा है, और वो तीनों शायद आई थिंक 11:30 सवा 2 और 3:30 की फ्लाइट से इस शहर में आ जाएंगे, और 2 दिन हम लोग नेक के कार्यक्रम में अति व्यस्त रहेंगे। और मैंने कहा भी था कि मेरी व्यस्तता काफी रहेगी। 22-23 को मैं अपने महाविद्यालय में भी मुश्किल से ही जो है कई कार्यक्रमों में मैं जो है भाग नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि नेक की टीम है और कल कन्वोकेशन भी है विश्वविद्यालय का। इसके बाद क्योंकि रेखा मैडम का एक फोर्सफुली रिक्वेस्ट आग्रह था, तो मैं डिनाई नहीं कर पाया। आई एम थैंकफुल टू all the management, vice chancellor, co-vice chancellor, faculty members and students for inviting me and listening me the lecture. Thank you very much. Jai Hind. Priyanka? Thank you so much, sir. Now, if anybody wants to ask a question from sir, you can ask. Just raise your hand. Anybody wants to ask a question from sir? कुछ क्वेश्चन तो पूछना आवश्यक है, उससे लगेगा कि आप लोगों ने सुना है। आई थिंक क्वेश्चन शुड बी रेज्ड। आप लोग बीटेक के भी छात्र हैं, तो हाउ रामानुजम कैन बी हेल्पफुल इन टेक्निकल एजुकेशन, है ना। बहुत सारी चीजें, नंबर थ्योरी किस तरह से तकनीकी शिक्षा में उपयोगी हो सकती है ना। आप लोग पढ़ भी रहेंगे, बट कुछ चीजें आप जो है कुछ क्वेश्चन पूछिए, हम भी चाहते हैं। सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम लोग बीटेक के छात्र हैं, किस तरीके से हम अपनी फर्दर स्टडीज में रामानुजन को लेके रिसर्च आदि कर सकते हैं। ज्यादा कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखेंगे कि रामानुजन का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन जो था, यद्यपि जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर तो हम भी जानते हैं कि मॉक थीटा फंक्शन था, लेकिन उसकी बिगेस्ट डिस्कवरी जो थी वो प्राइम नंबर्स थ्योरी। आपको प्राइम नंबर थ्योरी के ऊपर मैं सोचता हूं कि बच्चा स्कूल एजुकेशन से ही पढ़ने लग जाता है। और आपको ये पता होगा कि जो पूरा आईटी सेक्टर है, आईसीटी है, CST है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इट इज बेस्ड ऑन द प्राइम नंबर्स थ्योरी। आपको पता होगा कि प्राइम नंबर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसको हम अभी भी जनरलाइज नहीं कर पाए। यानी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम नंबर्स रिड्यूसेस एज वी गो टुवर्ड्स लार्जर नंबर। क्या हम ये जान रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना। अभी भी प्राइम नंबर के ऊपर जो अंतिम फार्मूला है वो रिमान हाइपोथेसिस है ना। तो रिमान हाइपोथेसिस में भी आप देखेंगे कि प्राइम नंबर थ्योरी, ये आपका जो एटीएम पासवर्ड सिस्टम है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, इट इज बेस्ड ऑन प्राइम नंबर थ्योरी। आप यदि हम बात करें कि सपोज आई टेक ए नंबर 15, तो 15 जो है इसको, यानी हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा जो है उसमें क्या है कि कोई भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली इट इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ प्राइम्स। 15 को मैंने डिवाइड किया है तो 3 into 5, ठीक है ना। यदि 3 into 5, यदि मैंने 4 को डिवाइड किया तो 2 into 2, तो 2 इज अगेन ए प्राइम, 3 and 5 इज अगेन ए प्राइम। तो या तो वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर है या के पावर्स ऑफ प्राइम नंबर के रूप में। तो ऑन दी इसी आधार पर पूरा जो बैंकिंग पासवर्ड और आईसीटी जो कंप्यूटर एल्गोरिथम्स बने हैं, अगर आप कंप्यूटर एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे तो प्राइम नंबर थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड हो। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ प्राइम्स अप टू n, दैट इज पाई n, दिस इज अप्रोक्सीमेट टू n upon log n, यानी फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ n बियॉन्ड द रीच ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। ये जो प्राइम नंबर थ्योरी है
ये तो पूरी की पूरी जो है वो टेक्निकी छात्रों के लिए। इसी तरह से आप आगे भी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि प्राइम नंबर थ्योरी का क्या मतलब कंसेप्ट है। प्राइम नंबर्स के ऊपर अभी भी हमारे पास कोई ये कह सकते हैं कि न तो एमजीएफ है जिसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं, न ही कोई जनरलाइजेशन फार्मूला है। हम अरिथमेटिक मीन है ना, ज्योमेट्रिक मीन है ना, हार्मोनिक मीन, इसके तो जनरल रूल्स और फार्मूले जानते हैं, बट स्टिल वी हैव नॉट एनी फार्मूला टू कैलकुलेट अ प्राइम नंबर, सपोज 10,000 प्राइम। तो प्राइम नंबर थ्योरी जो है इट इज वेरी यूजफुल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन वाले जो छात्र हैं उनको निश्चित रूप से प्राइम नंबर थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। और यदि उसका आप एप्लीकेशन देखेंगे, आप कहीं भी जाइए, आप मोबाइल क्रांति देखें, ये तकनीकी शिक्षा, टेलीफोन, उसके बाद में टेलीफोन एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये उस प्राइम नंबर थ्योरी पर बेस्ड है जिसको रामानुजम ने इंडिपेंडेंटली खोजा और कुछ काम उनका हर डी के साथ है। तो वेरी गुड क्वेश्चन, प्राइम नंबर थ्योरी आप पढ़िए। एनी मोर क्वेश्चन? Sir, one more question is there in chat box. या What are the applications of Ramanujan theory in physics? It is asked by Dr. Malesh Das sir from physics department. पार्टिकल फिजिक्स, यदि आप देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ ए नंबर, जो कि फिजिक्स के क्या नाम बताया सर का? Das sir. दास सर, आप सुन रहे हैं? जी सर, आई एम लिसनिंग टू यू सर, थैंक यू। यस यस, देखिए पार्टिकल फिजिक्स, आपने पार्टीशन थ्योरी को पढ़ा होगा। पार्टीशन थ्योरी से मतलब बहुत सरल भाषा में मैं बताऊं तो आप किसी नंबर को कितनी पद्धति से लिख सकते हैं, जबकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो। सपोज आई हैव 4, तो 4 कैन बी रिटन एज 4 + 0, 1 + 3, 2 + 2, ओके, 4 + 0, 3 + 1, 2 + 2. Any more technique? No. तो 4 can be written in 3 ways. तो यहाँ ये प्रश्न आया कि 50, यदि कोई नंबर मैंने 50 ले लिया तो इसको आप कितनी पद्धतियों से लिख सकते हैं? तो 50 को लिखने के लिए 14039 ways, यानी जिसको हम कहें कि 14,039 ways when we can represent a number like 50. अब ये पार्ट आया कि संख्या को यदि हम और बड़ी कर दें में, तो संख्या को जब हमने और बड़ा किया तो एक नंबर लिया गया 5 डिजिट का, तो उस 5 डिजिट के नंबर को लिखने के लिए कंप्यूटर भी जो है वो भी नहीं लिख पाए थे। और बाद में हमारे उसको रामानुजम ने भी कहा किया, हार्डी ने भी किया, एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए थे, यद्यपि वो कर्नल थे, मैकमोहन, तो कर्नल मैकमोहन ने भी इस पर कार्य किया। और जब सुपर कंप्यूटर आए तो सुपर कंप्यूटर ने ये चीज कही कि अभी आपको पता होगा कि लगभग 10 वर्ष पहले आइंस्टीन बोसान पार्टिकल थ्योरी आपने पढ़ी होगी, फिजिक्स के हैं, ठीक है ना। तो बोस आइंस्टीन थ्योरी जो थी उसमें इस चीज की खोज की गई थी कि जब ये यूनिवर्स बना, when the universe was formed, तो ये कैसे बना। उसके लिए आपको पता होगा कि एक 10 किलोमीटर लंबी एक सुरंग जो है, एक कैनाल 10 किलोमीटर लंबी स्वीडन के पास बनाई गई, और वहां पर ये जो रामानुजम की जो अभी आपने पूछा पार्टिकल फिजिक्स को यूज किया गया, और कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का जो है जिसको हम कहते हैं ना कॉलिजन, उस कॉलिजन उस रफ्तार से किया गया कि 10 × 10⁻126 उसमें जो तो ये स्वीडन की लैब में ये जो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट किया था, इट वाज बेस्ड ऑन द पार्टीशन थ्योरी ऑफ रामानुजन। और तब इन्होंने ये माना कि कोई एक पार्टिकल जरूर इन इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन से पैदा हुआ है, और फिर उस पार्टिकल को क्या नाम दिया था, गॉड पार्टिकल। जो डिस्कवरी बोसान ने, आइंस्टीन बोसान पार्टिकल की जो थ्योरी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका कंप्लायंस जो है वो 10 वर्ष पहले हुआ, और वही रामानुजम की पार्टीशन थ्योरी के ऊपर नंबर बेस्ड है। एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू।
प्रियंका तुम्हारा म्यूट है शायद। Okay. नहीं ओपन है मैम, ओके। हाँ Now I invite Dr. Rekha Jain, HOD Mathematics, Medicaps University for the vote of thanks. Thank you, Priyanka. I, Dr. Rekha Jain, HOD Mathematics, on my behalf of Mathematics Department, Medicaps University, and on my own behalf, extend a very heartful thanks to our expert, Dr. V.K. Gupta sir, for sharing his valuable and vast knowledge about our Indian heritage. सर आपको सुन के ऐसा लगा कि हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, इतना रिच हमारा अध्यात्म है, इतना रिच हमारा गणित है, और इतने अच्छे अच्छे लाइक रामानुजन जैसे मैथमेटिशियंस, आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियंस हमारे यहाँ हुए हैं। पर ये आयरनी है इंडिया की that we are not proud of our own products. We are looking towards Europeans and American products. So आपके लेक्चर को सुन के हमारे बच्चों को भी ये भाव आए होंगे जरूर कि हमारा जो रिच कल्चर है उसे पढ़ना चाहिए, और क्योंकि यूरोपियन लोग भी उसका यूज कर रहे हैं, सभी लोग एस्ट्रोनॉमी में हर जगह हमारा जो कल्चर है वो यूज हो रहा है, जो हमारा ज्ञान यूज हो रहा है, तो व्हाई नॉट वी। तो सर आपका लेक्चर सुन के हमें बहुत मोटिवेशन मिला है, और जिस तरीके से आपने बताया कि ये कुछ बायोग्राफीज जो है वो एटलीस्ट हमको पढ़नी चाहिए, तो सर वी लुक फॉरवर्ड इट। थैंक यू सो मच। Now in the same connection of vote of thanks, I would like to express a big thanks to our honorable Vice Chancellor Dr. Patnaik for all his supports and motivation. I would also like to thank our Pro Vice Chancellor Dr. D.K. Panda for his guidance and support. Well, a weekly program like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago, and I have been very fortunate to have a dedicated colleagues of mine who have made all the efforts to make this event successful. In this reference, I would like to name few of them as Dr. Rinku Verma and Dipali Biniwale, co-convener of this weekly event, have made such arrangements to make the events successful and smooth conduction. I would also like to thank our technical team for all their supports. A special thanks to our sponsor, National Council for Science and Technology Communication Delhi and MP Council of Science and Technology Bhopal for giving financial aid to us. Thank you so much. Last but not the least, my all dear students to listen it carefully and participating in the lecture. Thank you so much. Once again, I thank Dr. V.K. Gupta sir. Thanks for accepting our invitation from your busy schedule. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। नमस्कार सभी को। Namaste. नमस्ते सर।